आज हम वर्कशीट नंबर 2 करते हैं जो आपको फ्राइडे को करनी होती है। तो वर्कशीट नंबर 2 जो 7th क्लास की साइंस की है, पीछे हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर देयर, वन इज़ ऑटोट्रॉफ्स, अदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हैं वो किस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं और हेटेरोट्रॉफ कैसे करते हैं और उनमें जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, हाउ इट हैपन्स। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर करते हैं अपना फूड सेल्फ से, एंड दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। जैसे ग्रीन प्लांट्स डू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बिकॉज दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, एंड विच प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज कॉल्ड photosynthesis. As you can see, the roots can take the water and the minerals. Chlorophyll is present in the leaf and the sunlight present in the suns, and the carbon dioxide present in the air is used by the plants to make photosynthesis process, and intake of carbon dioxide also takes place in the leaves, as well as from the leaf oxygen is the waste product for the plants, and that is necessary for the human beings. So the leaves have a green pigment that is called chlorophyll. You can define it. And what is the purpose of chlorophyll? Chlorophyll helps the leaves to capture the energy of the sunlight, as well as the process by which green plants prepare food from the carbon dioxide and water and in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. Very very important. This is the definition of photosynthesis. You have to write down in your copy. And carbon dioxide from the air is taken in the tiny pores present in the surface of the leaves that are called stomata. You can see the stomatal pores where the exchange of gases takes place, and there are the guard cells. You can see the bean shape is guard cells, and there are some pores inside the guard cells that are called stomata. So these are the two definitions that you have write in your copies. And next, water and the minerals, these are transported to the leaves by the vessels which run like the pipes throughout the plants that are called xylem, and the solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food, and sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. So very simple worksheet is there. You have to read out the paragraph and then do the questions. First one is what is photosynthesis. So photosynthesis is written here. This is the definition of photosynthesis. Now the second question is what is stomata. The tiny pores present in the leaves are called stomata. It is written here. And sometimes you can also extend the questions ki what is the purpose of stomata. Stomata is helpful for exchange of the gases in the photosynthesis process, intake of carbon dioxide and and release of oxygen for the human beings in the plants should be taken by the stomatal pores. Next question है question number 3. Why the sun ultimate source of energy? Because every organism requires sun energy for their food, for making food, and all the autotrophs require sun energy, and autotrophs there is a need of autotrophs for the heterotrophs because heterotrophs cannot make their own food. They depend upon the plants. Leaves are the food of dash food of the leaves are the food dash of the plants. What is written here? तो leaves क्या हैं? Leaves के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जो कैप्चर करता है एनर्जी को, एंड लीवर्स आर द फूड वेसल्स एक तरह से कह सकते हो, या फूड स्टोरेज होता है ऑफ द प्लांट्स। हमेशा लीफ के अंदर ही प्लांट्स का जो पार्ट है लीफ, उसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की वर्कशीट्स। तो स्वपोषण क्या है? स्वपोषण वो विधि होती है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो पिक्चर है इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि पत्तियों के अंदर जो पादप की, हम इसको खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं, फूड स्टोरेज पार्ट भी कहते हैं, और पादपों में खाद्य का निर्माण हमेशा पत्तियों के अंदर ही होता है। और पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस है, हम जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर भोजन तैयार करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पत्तियों के अंदर जो ऊपरी सतह होती है उस पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से वो लेते हैं, और इन्हीं छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद जल और खनिज कहाँ से लेते हैं पत्ते और जो पौधे हैं, जो इसके अंदर कुछ वाहिकाएं होती हैं और उन वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुँचाते हैं, और इसके अंदर कुछ नली जो होती हैं वो पादप में फैली होती हैं, और उसी के द्वारा जल और खनिज है वो जड़ों से पत्तों तक पहुंच जाते हैं।
पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वर्णक होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो सूर्य की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है, संग्रहित कर लेता है और उसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। और सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत है, क्योंकि हर एक जीव को सूर्य की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉपी में नोट करने हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है। रंध्र से आप क्या समझते हैं? रंध्र मतलब स्टोमेटा, जो मैं अभी बात कर रही थी, छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। ये देखिए, ये रंध्र है, ये रंध्री द्वार है, ये रक्षी कोशिकाएं हैं। उसके बाद सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन में कि सूर्य हर एक पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होते हैं और पौधों के ऊपर ही जितने भी विषम पोषी जीव होते हैं सारे पौधों पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या डिफरेंट फॉर्म में खाए जाते हैं, सेलुलोज की फॉर्म में खाए जाते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फोर्थ आता है, पत्तियां पादप की खाद्य क्या है? फैक्ट्री होती है। फूड स्टोरेज हमेशा पत्तों के अंदर ही होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, जरूर नहीं कि आप ये 4 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा भी इस पैराग्राफ को पढ़ के छोटे छोटे क्वेश्चन है 1-1 मार्क के आप बना सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो अच्छी तरह से इसको कॉपी में नोट करें और इसको दोबारा से रिमेंबर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।